So, hello, hey, hi. Today's topic is magnetic resonance diffusion, and in this chapter, we will study the applications, principle, and techniques of DWI and diffusion tensor imaging too. So, what is diffusion? Let's see. Diffusion means होता है random movement of water protons. Random movement of the water protons is known as the diffusion. The process by which the water protons diffuse randomly in the space is called H. Brownian motion. एंड जो प्रोसेस होता है प्रोटॉन्स का डिफ्यूज करने के लिए रेंडमली इन द स्पेस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. द वाटर प्रोटॉन्स डिफ्यूज टू डिसिपेट दियर थर्मल एनर्जी. वाटर प्रोटॉन्स जो होते हैं डिफ्यूज होते हैं टू डिसिपेट करने के लिए दियर थर्मल एनर्जी. And the difference in the mobility of water molecules between tissues gives the contrast in diffusion weighted imaging and helps to characterize tissues and pathology. तो क्या होता है कि वाटर डिफ्यूजन का मतलब होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ water protons, and process by which water protons diffuse randomly in the space is called Brownian motion, and the water protons diffuse to dissipate their thermal energy. The difference in the mobility of water molecules between tissues gives contrast in diffusion weighted imaging. तो कंट्रास्ट कैसे आता है वाटर मोबिलिटी वाटर मोलिक्यूल्स में जो डिफरेंस होता है मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से उससे टिश्यूज़ में कंट्रास्ट आता है जिससे कि डिफ्यूजन वेटिक इमेजिंग में यूज होता है एंड हेल्प करता है करेक्टराइज करने में टिश्यूज़ एंड पैथोलॉजी को. सो इन द आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन तो आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन में पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर प्रोटॉन्स मूविंग इन any one particular direction is equal to probability that it will move in any other direction. Isotropy uniformity in all directions. तो आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी जो होती है वाटर प्रोटॉन्स की मूविंग इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में इज इक्वल होती है टू द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मूव इन एनी अदर डायरेक्शन. आइसोट्रॉपी यूनिफॉर्मिटी इन द डायरेक्शंस. एंड एन आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन का मतलब होता है water diffusion has preferred direction. Water protons move more easily in some direction than other. वाटर प्रोटॉन्स जो होते हैं मूव करते हैं more easily in some directions than the other. So isotropic diffusion forms the basis for the routine diffusion weighted imaging, while anisotropic diffusion form करता है basis for the diffusion tensor imaging और टेक्टोग्राफी. तो आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन जो होता है वो फॉर्म करता है बेसिस फॉर द रूटीन DWI, वाइल एन आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन फॉर्म करता है बेसिस फॉर द डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग और टेक्टोग्राफी. तो जो आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन क्या फॉर्म किस चीज़ के लिए रूटीन DWI के लिए बेसिस फॉर्म करता है. जो एनाइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन होता है वो टेंसर डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के लिए और टेक्टोग्राफी के लिए बेस फॉर्म करता है. एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है वाटर डिफ्यूजन हैज प्रीफर्ड डायरेक्शन एंड वाटर प्रोटॉन्स मूव मोर इजीली इन सम डायरेक्शंस देन अदर. एनाइसोट्रॉपिक जिसमें की पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर प्रोटॉन्स मूविंग इन एनी पर्टिकुलर और one direction is equal to the probability that it will move in any other direction. Isotropy means uniformity in all directions. So how do we acquire diffusion weighted images को हम लोग कैसे एक्वायर करते हैं. So the statistical Tanner pulsed gradient spin-echo sequence. The statistical Tanner pulse gradient spin-echo sequence was first experimental sequence described for the acquisition of DWI. DWI के लिए statistical Tanner pulse gradient spin-echo sequence लिया गया सबसे पहली बार and form करता basis for the all DWI performed today. And it is a T2 weighted spin-echo sequence with diffusion gradient applied before and after the 180-degree pulse. तो ये फॉर्म करता है T2 weighted spin-echo sequence with diffusion gradients applied before and after the 180-degree pulses. Currently diffusion gradients can be applied to various sequences. आजकल हम लोग जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स होते हैं
उनको अप्लाई कर सकते हैं टू द वेरियस सीक्वेंसेस में एंड बट दे आर मोस्ट कॉमनली, लेकिन ये सब जो होते हैं मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इको प्लानर होते हैं, मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इको प्लानर इमेजिंग सीक्वेंसेस with the infinite T2 and steps in the diffusion method are outlined in the flowchart. So steps क्या क्या होते हैं? steps जो होते हैं 90 डिग्री पल्स होती है जो कि जाती है, प्रोटॉन्स अलाइन हो जाते हैं एंड फर्स्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है वेरिएबल फेज शिफ्ट अलोंग द ग्रेडियंट। इफ प्रोटॉन्स नॉट मूव करते हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं फर्स्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट के हिसाब से, अगर प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं तो 180 डिग्री का 180 डिग्री प्लस सेकेंड डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द फेज शिफ्ट होगा एंड ये लीड करेगा ब्राइट सिग्नल्स इन द रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन एंड इफ़ फोटॉन्स मूव कर रहे हैं तो 180 डिग्री प्लस सेकेंड डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा, नो कंप्लीट रिवर्सल होगा, इस पर कंप्लीट रिवर्सल नहीं होगा, फेज शिफ्ट बाई 180 डिग्री पल्स एंड सेकेंड डिफ्यूजन ग्रेडियंट एंड रिड्यूस्ड सिग्नल्स इससे प्रोड्यूस होंगे। इससे कैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे? रिड्यूस्ड सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, जबकि अगर प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं तो उसमें ब्राइट सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे इन द रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन। So a few terms and concepts including B value diffusion trace ADC. A few terms B value diffusion trace and ADC and T2 sign through are discussed below. तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे बी वैल्यू डिफ्यूजन ट्रेस एडीसी वगैरह, तो इनको देख लेते हैं। बी वैल्यू क्या होता है? द बी वैल्यू इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्यूजन वेटेड प्रोवाइडेड बाय द डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स। बी वैल्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग diffusion varying provided by the diffusion gradients. So it also indicates sensitivity of the sequence to the diffusion. ये सेंसिटिविटी को सीक्वेंस को डिफ्यूजन का इंडिकेट करता है। बी वैल्यू क्या होता है? इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्यूजन वेइंग प्रोवाइडेड बाय द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। यह इंडिकेट करता है सेंसिटिविटी ऑफ द सीक्वेंस टू द डिफ्यूजन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर। बी वैल्यू को सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर में करते हैं एक्सप्रेस एंड ये डिपेंड करता है ऑन एम्पलीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड सेपरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ amplitude separation duration of the diffusion gradient. So B value increases with the diffusion gradient strength, duration of their application and time between application of two gradients. So as the B value increases the signal from the water molecules reduces. जैसे जैसे B value increase होती है signal from the water molecule reduce होते हैं। at high B value B is equal to 1000 only tissues with very high T2 relaxation time or those with restricted motion of water molecules will have high signal. तो क्या होता है? बी वैल्यू इंक्रीज होती है विद द डिफ्यूजन ग्रेडियंट स्टैंड ड्यूरेशन ऑफ दियर एप्लीकेशन एंड टाइम के साथ बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ टू ग्रेडियंट। सो जैसे जैसे बी वैल्यू इंक्रीज होता है सिग्नल फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल्स रिड्यूस होते हैं। एट हाई बी वैल्यू जो कि 1000 हो सकता है ओनली टिश्यूज विद वेरी हाई T2 रिलैक्सेशन टाइम और दोज विद रेस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स विल हैव हाई सिग्नल। and a diagram of statistical Tanner sequence DG is equal DG क्या डिफ्यूजन ग्रेडियंट है तो 90 डिग्री का होगा, फिर डिफ्यूजन ग्रेडियंट, फिर उसके बाद आएगा 180 डिग्री, फिर से डिफ्यूजन ग्रेडियंट। इस तरीके से ये डायग्राम होता है। एंड डिफ्यूजन ट्रेस। सो व्हाट इज़ द डिफ्यूजन ट्रेस? So isotropic diffusion forms the basis for the routine diffusion imaging. Isotropic diffusion form करता है basis for the routine diffusion imaging. However, there will be some anisotropy to the movement of water molecules in the tissue and especially in the brain from white matter tracts. To reduce this anisotropy, the image with higher B value like B is equal to 1000 is acquired
in their directions along x and y and z axis. So diffusion changes along all three axes are then averaged to get a trace diffusion image. सो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन जो होता है फॉर्म करता है बेसिस फॉर द रूटीन डिफ्यूजन इमेजिंग. हाउएवर देयर विल बी सम anisotropy to the movement of water molecules in the tissues and especially the brain from white matter tracts. To reduce करने के लिए anisotropy the image with higher b value like 1000 is acquired in three directions x and y and z axis. So diffusion changes along all three axes are then averaged to get a, फिर तीनों एक्सेस में डिफ्यूजन को चेंज किया जाएगा, फिर उसका एवरेज किया जाएगा क्या गेट करने के लिए, गेट ए ट्रेस एंड डिफ्यूजन इमेज. सो नाउ एडीसी अपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट, इसका कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. सो एडीसी मैप वगैरह इसमें डिफ्यूजन में होता है. एडीसी ट्रेस बी वैल्यू. एडीसी अपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ द डिफ्यूजन, ये मेजर होता है डिफ्यूजन का. इट इज़ कैलकुलेटेड मैथमेटिकली फ्रॉम बी वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड वेरियस हायर बी वैल्यू इमेजेस. So signal attenuation of a tissue with increasing B value is plotted on graph with relative signals intensity on y-axis and B values on x-axis. The slope of the line represents ADC. तो क्या होता है एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, एक मेजर होता है डिफ्यूजन का. ये कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली फ्रॉम द बी वैल्यू होनी चाहिए 0 एंड वेरियस हायर बी वैल्यू इमेजेस. सो सिग्नल अटेन्यूएशन एक टिश्यू का होता है जैसे विथ इंक्रीजिंग बी वैल्यू इज प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ विथ रिलेटिव सिग्नल इंटेंसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड बी वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस. तो सिग्नल इंटेंसिटी होगी वाई एक्सिस में एंड बी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस में. सो स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करेगा एडीसी को. एंड दिस इज डन पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस बाय द कंप्यूटर. ये कैसे करते हैं, पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस ऑफ द कंप्यूटर एंड इज अवेलेबल एट द क्लिक टू द यूजर एज इमेजेस कॉल्ड एज एडीसी मैप कहते हैं. एंड एडीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. एडीसी इंडिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का. एंड द एरिया विथ रिड्यूस्ड एडीसी रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन जिसमें होता है विल मैनिफेस्ट एज bright area on the diffusion weighted images while the same area will turn dark on ADC map. जबकि जो सेम एरिया डार्क हो जाएगा इन द एडीसी मैप. तो एडीसी कैसा होता है, ये पिक्सल बाई पिक्सल बेसिस ऑफ द कंप्यूटर होता है एंड अवेलेबल होता है एट ए क्लिक टू द यूज़र एज इमेजेस कॉल्ड एज एडीसी मैप. एंड एडीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. द एरिया विद रिड्यूस्ड एडीसी रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन होता है विल मैनिफेस्ट एज ए ब्राइट एरिया ऑन द डिफ्यूजन रेटेड इमेजेस वाइल द सेम एरिया विल टर्न डार्क हो जाएगा ऑन द एडीसी मैप. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम एडीसी मैप. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी से हमें गेन हो सकती हैं. एंड ड्राइंग रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडीसी मैप गिव्स एडीसी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड जो ड्राइंग रीजन होते हैं इंटरेस्ट के ऑन एडीसी मैप, drawing region of interest on ADC map gives ADC value of that particular area or tissue expressed in millimeter square per second में देती हैं. Now T2 sign. What is T2 sign? ये भी यूज होता है in the diffusion weighted imaging में. The signal intensity of a tissue on DWI diffusion weighted imaging higher B value images not only depends on ADC but also T2 relaxation time of the tissues पे भी डिपेंड करता है. and the tissues with high T2 can appear bright on diffusion weighted imaging. जिसमें हाई T2 होता है उसका ब्राइट होती है diffusion weighted imaging में when they are not truly restricted, जबकि वो truly restricted नहीं होती. so ADC map helps to differentiate T2 sign from एक्चुअल रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन. तो एडीसी मैप जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है T2 साइंस फ्रॉम द एक्चुअल रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन से. सो द एरिया विद द ट्रू डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन विल टर्न डार्क ऑन एडीसी मैप वाइल
जो एरिया होगा ट्रू डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन वाला वो डार्क हो जाएगा एंड एडीसी मैप में, वाइल द एरिया विथ T2 साइन थ्रू विल रिमेन ब्राइट ऑन एडीसी मैप, जबकि जो T2 साइन वाला एरिया होगा वो एडीसी मैप में ब्राइट हो जाएगा। अनदर वे टू डील विथ T2 साइन थ्रू इज एक्सपोनेंशियल इमेजेस विच इज फॉर्म्ड बाय द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग images divided by T2 weighted, b is equal to 0, b value 0 होगी, images on the same series, these exponential images are called EADC, E है exponential के लिए, EADC by some vendors flips में, and truly restricted area is bright on EADC। जो ट्रूली रिस्ट्रिक्टेड इमेजेस होती हैं वो ब्राइट होती हैं एक्सपोनेंशियल एडीसी में, एक्सपोनेंशियल एडीसी में, यानी एडीसी के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। इमेजेस अवेलेबल टू व्यू। So in routine practice, diffusion weighted imaging is performed with a coplanar sequence and the acquisition time is typically less than a minute. So with the preset post processing, a few sets of images are available for viewing immediately after the acquisition. So depending on number of b values used, these images typically include b is equal to 0 image, higher b values images and the ADC map. Highest b value images are considered diffusion weighted image. Highest b value images क्या consider की जाती हैं? diffusion weighted images. And some vendors also provide exponential maps EADC. हाईएस्ट जो वी वैल्यू इमेजेस होती हैं वो कंसीडर की जाती हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस के तौर पे, एंड सब जो वेंडर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियल मैप्स EADC को। एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? न्यूरो इमेजिंग में एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। देयर इज ए फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप इन द टिश्यू इस्कीमिया which results into influx of extracellular water into the cells। तो इसमें फेलियर होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का इन द टिश्यू इस्कीमिया में, विच जो कि रिजल्ट करता है इन्फ्लक्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर वाटर इनटू द सेल, एंड इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक एडिमा। Since there is a net shift of water molecules from extracellular into the more restricted intracellular space, इसमें क्या होता है net shift of water molecules होता है extracellular से more restricted intracellular space में, there is overall reduction in the diffusion of water molecules in that area, इसमें overall reduction होगा in the diffusion of water molecules in that area, so this will be manifested as bright signals on the diffusion weighted imaging and dark signals on the ADC map। तो ये क्या मैनिफेस्ट करेगा एज ए ब्राइट सिग्नल के तौर पे ऑन द डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग एंड डार्क सिग्नल्स ऑन द ADC मैप। So diffusion weighted imaging can detect early ischemic tissues as early as minutes to hours। जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है वो डिटेक्ट करती है अर्ली इश्केमिक टिश्यूज़ को एज अर्ली एज मिनट्स टू आवर्स, एंड डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग शो करती है स्ट्रोक लीजन्स अर्लीस्ट व्हेन ऑल अदर इमेजेस इंक्लूडिंग T2 वेटेड इमेजेस आर नॉर्मल। जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग शो करती है स्ट्रोक लीजन्स अर्लीस्ट व्हेन ऑल अदर इमेजेस जो इंक्लूडिंग T2 वेटेड इमेजेस आर नॉर्मल। इट टेक्स सेरेब्रल ब्लड फ्लो टू ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली बिलो, इसमें क्या होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो को लेता है टू ड्रॉप करने में अप्रॉक्सीमेटली बिलो 15 to 20 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू, 16 to 20 पर 100 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू per minute to be manifested as bright signal on diffusion weighted imaging reduced ADC। So diffusion weighted imaging is very useful in detecting hypoxic ischemic injury in newborns, which also results in cytotoxic edema in early phase। So here you guys can see these are the diffusion weighted images
इसमें ऐसे दिखता है जो टिपिकल डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस इन ए नॉर्मल ब्रेन। सो पहली इमेज शो कर रही है बी वैल्यू 0 इमेज को, इसमें पहली में बी वैल्यू 0 इमेज देख सकते हैं। ये जो सेकेंड इमेज है ये बी वैल्यू इसमें 1000 जो है, पहले में बी वैल्यू 0 है तो ब्राइट सिग्नल्स आ रहे हैं, एंड दूसरे में बी वैल्यू 1000 है तो इसमें डार्क सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड जो थर्ड है वो एडीसी मैप है, डिफ्यूजर एडीसी मैप, एंड जो फोर्थ है एक्सपोनेंशियल मैप वाला ईएडीसी, इसमें डार्क सिग्नल्स आ रहे हैं। ओके, सो हियर यू गाइस कैन सी ये रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहे हैं, तो ये टिपिकल केस ऑफ स्ट्रोक शो कर रहे हैं, इसमें स्ट्रोक के केस हैं। सो डिफ्यूजन वेटेड shows bright area in the right MCA टेरिटरी, तो इसमें राइट MCA टेरिटरी में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन शो हो रहा है। एक आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रोक दिखा रहा है, दूसरी इमेज में भी स्ट्रोक दिख रहा है, एंड थर्ड इमेज ऑल्सो शोइंग द स्ट्रोक। दूसरी इमेज में डार्क एरिया एक्यूट इन्फार्क्ट शो कर रहा है, ये एडीसी मैप की इमेज है। एंड थर्ड जो है gradient hemo image, there is no evidence of any bleeding making the infarct on a non-hemorrhagic है। एंड जो फोर्थ इमेज है वो टाइम ऑफ फ्लाइट MRA ऑफ द सर्कल विलीज शोज एब्सेंस ऑफ द राइट ICA MCA ACA, ये सर्कल ऑफ विलीज दिखाया गया है TOF MRA में। एंड जो ये फिफ्थ इमेज है ये TOR है, TOR MRA ऑफ carotid artery shows complete occlusion of right, okay, right ICA from its origin. So here is you guys can see chronic infarct दिखाया गया है। chronic infarct in the left basal ganglion region is hypointense on the diffusion weighted imaging and bright on the ADC मैप में ब्राइट शो होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कॉन्ट्रेरी टू द साइटोटॉक्सिक एडिमा, कहाँ पे थे थ्योरी हमारी, साइटोटॉक्सिक एडिमा इन द अर्ली फेज में दिखाता है। एंड ये कॉन्ट्रेरी टू द साइटोटॉक्सिक एडिमा, वैसोजेनिक एडिमा मीन्स इंक्रीज्ड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। जो वैसोजेनिक एडिमा का क्या मतलब होता है, इंक्रीज्ड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, सिंस द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस अलाउज मोर मोबिलिटी। एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो अलाउ करता है मोर मोबिलिटी को, एंड मोर मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। There will be increased diffusion seen as signal attenuation on diffusion weighted imaging। तो इसमें इंक्रीज्ड डिफ्यूजन होगा सिग्नल अटेन्यूएशन का ऑन DWI एंड इंक्रीज्ड सिग्नल ऑन द ADC मैप। सो क्रोनिक इन्फार्क्ट इज डार्क ऑन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग एंड ब्राइट होता है ऑन द ADC मैप में। सो एपिडर्मॉइड वर्सेस एरेक्नॉइड सिस्ट, एपिडर्मॉइड वर्सेस एरेक्नॉइड सिस्ट। तो एपिडर्मॉइड क्या होता है, एपिडर्मॉइड इज ए कंपोज्ड ऑफ केराटिन, केराटिन का बना होता है, डेब्रिज एंड सॉलिड कोलेस्ट्रॉल विच प्रोवाइड बैरियर एंड हैंड्रेंस टू डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। एपिडर्मॉइड किस चीज़ से बना होता है, केराटिन, डेब्रिज एंड सॉलिड कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। प्रोवाइड करता है बैरियर टू हैंड्रेंस और टू डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस द एपिडर्मॉइड इज सीन एज ए ब्राइट लीजन। एंड इसी वजह से एपिडर्मॉइड ब्राइट लीजन के तौर पे शो होता है इन द डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में। सिंस अरेक्नॉइड सिस्ट इज क्लियर CSF कंटेनिंग सिस्ट, अरेक्नॉइड सिस्ट जो होती है क्लियर होती है, CSF कंटेनिंग सिस्ट होती है, इट विल नॉट बी ब्राइट ऑन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, विल बी सेम एज CSF इन द सिग्नल इंटेंसिटी, CSF की जैसे दिखेगी। सो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैन डिटेक्ट रेजिडुअल
एपिडर्माइड, रेजिडुअल एपिडर्माइड को डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट कर सकती है, जबकि एरेक्नॉइड सिस्ट जो CSF कंटेनिंग सिस्ट होती है, इस वजह से ये सेम सिग्नल्स देगी एज CSF. सो एब्सेस वर्सेस सिंपल सिस्टिक लीजन. सो एन एब्सेस कंटेन्स थिक फ्लूइड. एब्सेस में कैसा होता है, थिक फ्लूइड होता है with hindrances to water diffusion, hence it shows restricted diffusion. एब्सेस में थिक फ्लूइड होता है जो कि ऑब्स्टेकल्स शो करता है टू द वाटर डिफ्यूजन, एंड इसी वजह से रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन होता है, एंड प्रीडोमिनेंटली इन द सेंटर. So cystic lesions with relatively clear fluid does not show restricted diffusion. Cystic lesions क्या होते हैं, क्लियर फ्लूइड होता है, इस वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं. ओके, एंड डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इन ब्रेन ट्यूमर्स. सो जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होती है ब्रेन ट्यूमर में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैन प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैसी कैसी इंफॉर्मेशन हमें दे सकती है ब्रेन में, the qualitative and quantitative information about the brain tumor can provide to us, and at cellular level such as cellularity and cell membrane integrity, a tumor with more number of cells and intact cell membranes. तो क्या होता है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैन प्रोवाइड qualitative and quantitative information at the cellular level such as cellularity and cell membrane integrity, and a tumor with more number of cells and intact cell membranes will not show much motion of water molecules, so नहीं करेगा much motion of water molecules, and will appear bright on diffusion weighted imaging. So on the other hand, tumor with less cells and broken cell membrane, for example from chemotherapy, will not be restricted on diffusion. तो जो ट्यूमर में लेस सेल्स और ब्रोकन सेल्स मेम्ब्रेन्स होंगी तो वो कैसे किस में होता है, कीमोथेरेपी वगैरह जिसमें होता है उसमें, और उसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में. डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, कैरेक्टराइज एंड टू असेस कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स इन ट्यूमर्स में. डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो है डिटेक्ट, कैरेक्टराइज एंड असेस करने के लिए कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स इन ट्यूमर्स में इसलिए यूज होता है. सम ट्यूमर्स लाइक, कुछ ट्यूमर्स जैसे कि मेड्यूलोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा एंड लिम्फोमा. मेड्यूलोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा एंड लिम्फोमा आर रेस्ट्रिक्टेड ब्राइट ऑन DWE. ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ब्राइट होते हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में. आफ्टर कीमोथेरेपी देयर इज ए शार्प increase in the ADC value of some tumors within first 2 weeks of treatment, and after chemotherapy के बाद there is a sharp increase in the ADC value of some tumors within first 2 weeks of treatment. So this increase in ADC value corresponds with the volume of the tissue killed and can be used for assessing response to the chemotherapy and prognostication. So restricted bright on diffusion weighted imaging होता है. After chemotherapy there is a sharp increase in the ADC value of some tumors within first 2 weeks of treatment. So ये increase जो होता है ADC value में correspond करता है with the volume of the tissue killed and can be used for assessing response to chemotherapy and prognostication. ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर हम लोग. हियर इज़ द इमेजेस ऑफ द एब्सेस. ये एब्सेस की इमेजेस हैं, एंड ये डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग शो कर रहे हैं. एक्सियल फ्लेयर इमेज कैन शो लार्ज एब्सेस इन द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. जो पहली इमेज है एक्सियल फ्लेयर इमेज है, एंड इसमें एब्सेस शो हो रहा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. एंड जो सेकेंड इमेज है ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज है, शो कर रही है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्सेस ऑफ द, जो कि ब्राइट शो हो रहा है.
एंड जो थर्ड इमेज है वो एडीसी मैप की इमेज है, जो कि सेंटर पार्ट ऑफ एप्सिस शो कर रही है। टर्न्स ब्लैक सजेस्टिव ऑफ रेस्ट्रिक्टिव डिफ्यूजन है। एंड सराउंडिंग एडिमा which is increased fluid in extracellular space is bright on flare and low on diffusion weighted imaging. Bright on ADC map suggestive of increased diffusion. Okay, so here is the image of the lymphoma. इसमें इल डिफाइंड एरियाज जो कि हैं रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन के एंड सीन हो रहे हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच आर ब्राइट ऑन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग एंड डार्क ऑन द एडीसी मैप। सो जो कि पहला जो कि ब्राइट है वो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है और जो डार्क है वो उसमें एडीसी मैप की इमेज है। टर्न्ड आउट टू बी प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। लिम्फोमा सो restricted diffusion due to its high cellularity. And this is the image of diffusion weighted imaging in abdomen. सो पहली इमेज जो है डिफ्यूजन वेटेड इमेज शो कर रहा है बी वैल्यू 800 है। एंड जो सेकेंड इमेज है उसमें बी एडीसी मैप की इमेज है। नॉर्मल एब्डोमेन T2 साइन थ्रू इन द GB एंड किडनी। सो ट्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्प्लीन जो है इन द स्पाइनल कॉर्ड। अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड इंक्लूड लिम्फ नोड्स एंड ओवरीज एंड टेस्टिस। तो आप लोग देख सकते हैं। सो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इन बॉडी इमेजिंग में कैसे यूज होता है। सो यूज ऑफ द diffusion weighted imaging in body imaging is relatively new. So the two big obstacles to the application of diffusion weighted imaging in the body imaging are motion from various causes and short T2 of various organs. सो क्या होता है जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इन द बॉडी इमेजिंग होता है जो रिलेटिवली न्यू है एंड टू बिग ऑब्स्टेकल्स हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग in the body imaging are motion from various causes and short T2 of various organs. So with the advances in the technology diffusion weighted imaging in the body can be performed with breath hold के साथ perform कर सकते हैं with respiratory triggering and even with free breathings diffusion weighted breathings BS के नाम से। इन जनरल लोअर B वैल्यूज आर यूज्ड इन body imaging than neuro imaging to counteract signal loss due to shorter T2 एंड जनरल जो होता है लोअर बी वैल्यूज होती हैं यूज होती हैं इन बॉडी इमेजिंग में एंड देन न्यूरो इमेजिंग to the counteract signal loss due to shorter T2 and presently diffusion weighted imaging in body imaging is mainly focused in tumor imaging and assessing treatment response in tumors जो कि असेस करने में ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इन ट्यूमर्स के लिए यूज होते हैं। रिसेंटली होल बॉडी डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग विद बैकग्राउंड सप्रेशन and free breathing has been reported for the staging for tumors and lymphoma with the potential to replace presently used radiation involving techniques like PET MRI जो होता है and this technique is called DWIBS diffusion weighted whole body imaging with background body signal suppression। DWIBS का फुल फॉर्म क्या है? डिफ्यूजन वेटेड होल बॉडी इमेजिंग विद बैकग्राउंड बॉडी सिग्नल सप्रेशन एंड द फाइनल DWIBS images show only the diffusion restricted स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो ये DWIBS जो होता है फाइनल इमेज शो करती है डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग क्या होता है? So routine diffusion weighted imaging is based on the isotropic diffusion. DTI diffusion tensor imaging is based on the anisotropic diffusion of the water molecules and tensor is the mathematical formalism used to model anisotropic diffusion. So इसकी टेक्निक क्या होती है? So its technique is MR scanner axes are X, Y and Z are never perfectly parallel to the white matter tracks as at every point in the image.
तो MR स्कैनर एक्सेस जो होते हैं X and Y and Z एक्सेस आर नेवर परफेक्टली पैरेलल होते हैं टू द white matter tracks at every point in the image. So in the diffusion tensor imaging images are acquired in at least 6, usually 12 to 24 directions instead of the 3 in the usual trace diffusion. So pure apparent diffusion coefficient for each pixel is calculated from these images in multiple directions. So pure apparent diffusion coefficient for the each pixel is calculated from these images in the multiple directions. तो multiple directions में, and this is called as principal ईजन वैल्यू. इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ईजन वैल्यू कहते हैं. द प्रिंसिपल ईजन वैल्यू इज कैलकुलेटेड अलॉन्ग द ट्रू एक्सिस ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड एज ईजन वेक्टर. सो इसको क्या कहते हैं? ईजन वेक्टर कहते हैं. द इमेज फॉर्म्ड विद द प्रिंसिपल ईजन वैल्यू इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन टेंसर इमेज दैट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स. तो क्या होता है? प्योर अपरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और ईच पिक्सल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस. एंड ये जो दिस इज कॉल्ड कहलाता है क्या? प्रिंसिपल ईजन वैल्यू. एंड प्रिंसिपल ईजन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है अलॉन्ग विद द ट्रू एक्सिस ऑफ द डिफ्यूजन. इसको कहते हैं ईजन वेक्टर. एंड इमेज फॉर्म्ड विद द प्रिंसिपल ईजन वैल्यू इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन टेंसर इमेज दैट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स. सो इसके यूजेस क्या होते हैं? डिफ्यूजन टेंसर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ADC in the preferred direction of the water diffusion and also perpendicular to the direction. So इसके यूज क्या होते हैं? डिफ्यूजन टेंसर मेजर करता है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द ADC in the preferred direction of the water diffusion and also perpendicular to the direction. And the resultant image shows white matter tracts very well. The resultant image है वो शो करती है white matter tracts very well. Hence this technique is also called as tractography. So DTI का डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग का क्या यूज है? डिफ्यूजन टेंसर मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ADC इन द प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ द वाटर डिफ्यूजन एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. एंड रिजल्टेंट इमेज शो करती है वाटर ट्रैक्ट्स वेरी वेल. इसी वजह से इस टेक्निक को DTI को ट्रैक्टोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या शो करती है? वाइट मैटर ट्रैक्ट्स को. एंड वेरियस मैप्स यूज टू इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स इंक्लूड FA फ्रैक्शनल एनाइसोट्रॉपी, RA रीजनल एनाइसोट्रॉपी, VA वॉल्यूम रेशियो मैप्स. तो क्या होता है? वेरियस जो मैप्स यूज होते हैं टू इंडिकेट करने के लिए ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स इंक्लूड FA फ्रैक्शनल एनाइसोट्रॉपी, RA रीजनल एनाइसोट्रॉपी एंड VA वॉल्यूम रेशियो मैप्स. ट्रैक्टोग्राफी इज, तो ट्रैक्टोग्राफी क्या होती है? यूजफुल फॉर असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रैक्ट्स विद ट्यूमर्स एंड ट्यूमर इन्वेजन ऑफ ट्रैक्ट्स एंड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग. तो ये ट्रैक्टोग्राफी यूजफुल होती है फॉर द असेसमेंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रैक्ट्स विद ट्यूमर एंड ट्यूमर इन्वेजन ऑफ द ट्रैक्ट्स एंड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू इवेलुएट वाइट मैटर ट्रैक्ट्स इन वेरियस कंजेनाइटल एनोमलीज एंड डिस्प्लेजिया. ये ऑल्सो यूज होती है टू इवेलुएट करने के लिए वाइट मैटर ट्रैक्ट्स को इन वेरियस कंजेनाइटल एनोमलीज एंड डिस्प्लेजियास में. सो हेयर यू गाइस कैन सी DTI इमेज is given here. So fractional analysis है इस image का, and in some direction anterior to posterior shows bright genu of the corpus callosum and optic radiation because of these fibers are perpendicular in this direction. Such images are obtained 12 or 24 directions to get the tractography. तो ये DTI इमेज है एंड इसको 12 से 24 डायरेक्शंस में लिया जाता है जिससे कि ट्रैक्टोग्राफी हो सके, पता चल सके. एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.